Good morning, student. Till last video that we discussed yesterday, we have discussed that how the constitutions of India was drafted. Now today, students, I am going to explain a very little and very last point of this chapter about the institutional design. Till yesterday, what we have discussed about the preamble of the constitution. देखिए अब आप ये समझेंगे कि preamble क्या है. तो my dear students, the constitution start with a short statement with its basic value that is termed as a preamble of the constitution. There we have discussed about this, students. We have also discussed why the Indian constitution has been still in functions though it was drafted before 70 years. It was because, students, we noticed that the Constituent Assembly which drafted the constitutions has worked in a open manner, that the Constitution of India only has been adopted after the discussions, amendment एंड डिलिब्रेशंस. अब अमेंडमेंट क्या देखिएगा स्टूडेंट्स, अमेंडमेंट क्या होता है? सुधार, संविधान में बदलाव. There is the provision in the constitution that with the change in the society of the country, some article of the constitutions can be changed in future. That students provide the future sanctity about the constitution, students. Today that I am going to discuss about the institutional design. देखिए स्टूडेंट, संविधान सिर्फ एक रूल्स और रेगुलेशन की लिखित पुस्तिका नहीं है. It does not only, students, have a principles and the guiding value. Beside, students, the guiding value and all the principles that is embedded in the constitution also, student, define the working culture of a country. देखिए इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या हो गया. अब इंस्टीट्यूशन का मतलब आप समझिए कि इंस्टीट्यूशंस है द वेरियस अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू विच ए गवर्नमेंट रूल ओवर ए कंट्री. ठीक है, अरेंजमेंट क्या है? देखिए आपका डिपार्टमेंट सब जगह अलग अलग मिलेगा स्टूडेंट. ठीक है, कोई प्रशासनिक से आते हैं, कोई सिविल से आते हैं, है ना. आप अपने ही राज्य में देखिए, अपने ही ज़िला में देखिए, तो डिफरेंट पीपल, स्टूडेंट्स, कम्स फ्रॉम द डिफरेंट वे टू हेल्प द गवर्नमेंट, है ना. हम शिक्षक हैं, हम आपको पढ़ाने का काम करते हैं, हमारा ग्रुप अलग है स्टूडेंट्स, है ना. पुलिस है, उसकी फंक्शन अलग है. तो दिस ऑल आर कॉल्ड द वेरियस अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ए गवर्नमेंट थ्रू दिस वेरियस अरेंजमेंट रूल द कंट्री. अब अरेंजमेंट को देखिए, इसे कोई कानून बनाना है तो क्या हम लोग बैठ के कानून बना सकते हैं? नहीं. इसके लिए क्या है? लिमिटेड बॉडी है, दैट वी कॉल लेजिस्लेचर. हम उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं. ये ड्यूटी लेजिस्लेचर का है कि वो कैसे कानून बनाएगा और कौन सा कानून बनाएगा, है ना. तो दिस इज कॉल्ड द वेरियस अरेंजमेंट. हम इसको वेरियस अरेंजमेंट बोलते हैं. थ्रू विच ए गवर्नमेंट रूल द कंट्री, जिसके द्वारा एक सरकार देश पर शासन करती है. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि आप लोग ऐसे हैं जो कानून को लागू करता है, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव. तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स इफ वी थिंग्स, तो वी फाइंड देयर आर द थ्री इंस्टीट्यूशन that all together work for the development and welfare of the country. These are legislature, executive and judiciary. About these three institutions you have already, students, read, ठीक है, in previous class. But in short you must know legislature is a body, elected body, students, which frame the law for the country. Executive implement it, and judiciary, students, look after that how the people are avoiding the law that has been drafted or enacted by the legislature and executive. This is all about. Beside, students, तो I was telling you that the constitution is only not a set of rules and principles. Beside it, students, provide all the instructions how to govern the country. Means what? There are the separate power distribution for each and every organ of the government. ऑर्गन क्या है सरकार का? जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. तो देयर इज द सेपरेट एंड डिविजल पावर, स्टूडेंट्स, एमंग दिस ऑल थ्री ऑर्गन टू रूल दिस कंट्री. ठीक है. बिसाइड, स्टूडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशंस आल्सो लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए संविधान में सरकार के पावर को लिमिट भी किया गया है, ताकि कोई भी सरकार क्रूर नहीं हो, आर्बिट्रेरी नहीं हो. ठीक है. तो देयर इज, स्टूडेंट्स, ए कंप्लीट
means procedure, rules and function for each and every government which altogether work it. There students, we also notice that this institutional design which work within the country, students, all the rules and principle of these institutions have been clearly laid in the constitution, students. Okay, so that is students the institutional design. Beside, if we see the main motto of the institutional design, we find there, students, this institutional design, students, have the following feature in that. Unlike any constitution, the Indian constitution lays down ए प्रोसीड्योर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री. पूरा किस तरह से इलेक्शन होगा, कैसे सरकार बनेगी, ये सारा प्रोसीड्योर हमारे संविधान में है. इट डिफाइंस द पावर एंड लिमिटेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग. किसकी क्या पावर होगी, कौन कहाँ तक काम करेगा, ये सारा चीज़ इसमें है स्टूडेंट. इट पुट्स लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट टू द सिटीजन्स दैट कैन नॉट बी वायलेटेड. संविधान हम लोग को कुछ हक और अधिकार भी देता है स्टूडेंट्स, है ना, और हम उस अधिकार के द्वारा ही देश में रहते हैं. इट हैज़ ए प्रोविज़न टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस दैट गेट अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. हमने अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताया था कि समय के साथ समाज बदलती है और बदलते समाज के साथ इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो प्रोविज़न हमारा दिया हुआ है स्टूडेंट्स. उसमें हम ये देखते हैं दिस चेंजेस आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और हम इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं. एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है कि इट हैज़ ए प्रोविज़न टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस एंड गेट अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस चेंजेस आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड दैट इज स्टूडेंट्स वी नोटिस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, that how it students important. Okay, and everything our constitution students is written constitution. डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. सेंटर का क्या पावर होगा, स्टेट का क्या पावर होगा, सब डिवीज़न है स्टूडेंट्स. इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी है स्टूडेंट्स. ओके, तो दिस वाज व्हाट स्टूडेंट्स आई हैव टू गिव यू इन माय लास्ट वीडियो. आई होप दैट यू मस्ट understand better through this video also, and even if you have any problem, then you can students tell me through the social media. This was what a student we have to read in this chapter, and I hope that you will be well. Have a nice day. Okay, have a nice day.